in a significant development, India's football legend and Sikkim Democratic Front Vice President Baichung Bhutia today announced that he is quitting electoral politics. In a letter, Bhutia said that he has come to the realization that electoral politics does not suit him. In the letter, Bhutia went on to state that, I quote, after the 2024 election results, I have had the realization that electoral politics is simply not for me. I am therefore quitting all forms of electoral politics with immediate effect. My only regret is that I felt I had great ideas with regard to development of sports and tourism, which given a chance, I would have loved to implement and thus contribute to the growth of the state in a very honest and sincere way. Unfortunately, it was not to be. I am certain there will be more people with better ideas to do so, unquote. Well, the former footballer had earlier fought elections twice from West Bengal as a Trinamool candidate, the 2014 Lok Sabha polls from Darjeeling and the 2016 Assembly elections from Siliguri. He lost both. Then he moved his electoral base to Sikkim and formed his own party. He fought the 2019 Assembly elections from Gangtok and Tumenlinge, but tasted defeated in both his attempts. He also lost the 2019 by-poll from Gangtok. Bhutia had formed his own Hamro Sikkim party in 2018, but merged it with the SDF last year. During the Assembly elections this year, Bhutia lost to Sikkim Krantikari Morcha's Riksal Dorji Bhutia by 4,346 votes. Baichung Bhutia received 4,012 votes, while his rival Riksal Dorji bagged 8,358 votes. Bhutia is currently the Vice President of the SDF. Baichung Bhutia has been credited for the resurrection of the Indian football team in the modern era. Well, he was also the first Indian footballer to represent a European club. Baichung Bhutia, with 48 goals for India, is the second highest scorer for the country after Sunil Chhetri. All right, now I'm being joined live with my colleague Prakash Adhikari from Gangtok. So Prakash, indeed a very big political development. India's football legend and SDF Vice President Baichung Bhutia, he announced that he is quitting from all kinds of electoral politics. So why is this sudden decision? Prakash. जी प्रिया, भाईचुंग भुटिया ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छोड़ने का आज डिक्लेयर किया है और उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू करके ये डिक्लेयर किया है। फुटबॉल के क्षेत्र में भाईचुंग भुटिया का जितना अच्छा उन्होंने उपलब्धि किया, उनका अचीवमेंट था, और पॉलिटिक्स में वो सफल नहीं रहे। 2014 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से अपना पॉलिटिकल करियर का शुरू किया था। 2014 में वो दार्जिलिंग से लोकसभा इलेक्शन फाइट किए थे। तब एस.एस. साहोलिया, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, उनका तो करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर वो 2016 में सिलीगुड़ी चले गए। सिलीगुड़ी से उन्होंने असेंबली पोल में फाइट किया। तब सीपीएम के लीडर अशोक भट्टाचार्य के हाथ उनका हार हुआ। फिर वो सिक्किम आए। सिक्किम में आकर 2018 में उन्होंने अभी के जो सिक्किम के लोकसभा एमपी है इंदिरा हांगसुबा, इस सबसे मिलके एक पार्टी का फॉर्म किया, हमरो सिक्किम पार्टी, वो भी अच्छा नहीं कर पाया। और 2019 के इलेक्शन में भाईचुंग भुटिया ने 2 जगह से फाइट किया। हमरो सिक्किम पार्टी के टिकट में गैंगटोक और तुमिलिंगी दोनों में ही उनका करारी हार हुआ। फिर 2019 के बाई इलेक्शन में उन्होंने गैंगटोक से फाइट किया, तब भी उनका हार हुआ। फिर हमरो सिक्किम पार्टी को उन्होंने एसटीएफ में मर्ज किया। 2023 में एसटीएफ पार्टी में वो ज्वाइन किए। और इस बार उनका नेटिव जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी बरफुंग से उन्होंने फाइट किया, मगर एसकेएम के कैंडिडेट रिक्सल दोरजी भुटिया के साथ उनका हार हुआ। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखें तो 10 इयर्स में उनका 6 बार हार हुआ। इसके साथ साथ उनका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट में भी उनका हार हुआ। तो टोटल मिला के 7 इलेक्शन, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन को देखे, असेंबली इलेक्शन को देखेगा तो 6, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन को देखेगा तो 7। तो टोटल 7 इलेक्शन में उनका हार हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, तो मैं अभी राजनीति छोड़ने जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है। मगर अभी तक उन्होंने एसडीएफ पार्टी
से रिजाइन देने का कोई ऐसा बात सामने नहीं आया है। प्रिया जी हाँ प्रकाश, so as you've already mentioned, currently he is the vice president of the SDF, so till now he has not decided on resigning as the vice president from the SDF. So any reaction coming in from the other members, party members of the SDF? How are they reacting to this big political development? उन्होंने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से छोड़ने का बात किया है, मगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने का बात नहीं किया है। तो एसडीएफ से वो रिजाइन करेंगे या नहीं वो अभी क्लियर नहीं है। उनके हम संपर्क करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। उनका बाइट नहीं मिल रहा है, वो अभी कहाँ है वो भी पता नहीं है। सिर्फ उन्होंने व्हाट्सएप में उनका जो प्रेस रिलीज है वो सेंड किया है, मैसेज किया गया है, मगर वो कब रेस्पॉन्स करेंगे और देखने वाली बात होगी। मगर अभी तक उन्होंने एसडीएफ से रिजाइन करने का कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है। मगर एक बात क्लियर है, भाईचुंग भूटिया ने स्पोर्ट्स और टूरिज्म सेक्टर में काम करने का अपना इच्छा जाहिर किया था। और जो खबर मिल रहा है कि भाईचुंग भूटिया का जो नेटिव विलेज है तिनकीताम, जो बरफुंग कंस्टिट्यूंसी के अंडर में है, वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी होम स्टे स्टार्ट कर चुका है। तो होम स्टे का बिजनेस स्टार्ट किया है और उनका जो देश में विभिन्न प्रांतों में जो फुटबॉल स्कूल है, भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल, वो चलाने की बात सामने आ रही है। प्रिया Right, Prakash Adhikari, thank you so much for all those details.